there are different type of data types. Okay, there are different type of data types. For example, if I say there are two types of data types, one is quantitative, second is qualitative. Quantitative and qualitative. Quantitative is quantity, qualitative is quality. Okay. When I say quantitative, it has two data types. One is discrete, second is continuous. It has further various data types. Nominal, ordinal, binomial. Okay. Now I explain it. Any data type, okay, any data type that can be counted but cannot go to decimal is discrete. For example, if I say number of people in this class, how many? 4. It cannot be 4.5. It cannot be 5.5. It can be either 4, 5, 6. So it is discrete. Okay. If I say number of players in Indian cricket team, discrete, this type of data, discrete data. Okay. Number of birds in India, discrete. Okay. Second is continuous. When we say continuous data type, it means the number that can be counted and can go to decimals as well. For example, age. I can be 35.5 years old. I can be 35.7 years old. Age. Height. 5'7", 5'7.5", 5'8.2 is the height. It's a continuous data type. Continuous data type is a data type that can be measured on a scale. Scale means to whatever decimal point you will go, it can be measured. Okay. The amount of water in this glass, which type of data type is? It is continuous. It can be 200.2 ml, 200.5 ml, anything. So it is continuous data. This is quantitative. We are talking about quantity. How many people in the class? How much water in the class? How many birds in India? How much temperature is there? Is the quantitative data, which can be discrete and which can be continuous. Clear to here? Okay. Now another is qualitative. So qualitative data type first is nominal. Nominal is different colors of chairs in this class. It is red, green, black, yellow, for example, 4. I'm saying different colors. It is nominal. When I say ordinal, ordinal is anything that can be ordered. For example, if I say I order you on the basis of your marks, rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. So nominal, how nominal it is different from nominal is, in nominal we cannot say blue chairs are better than red chairs. Ordinal we can say rank 1 is better than rank 2. That is ordinal. Third is binomial. Binomial is anything that can be either yes or no, true or false, okay, good or bad is. Any doubt till now? कोई doubt अब तक नहीं? Now there are various types of analysis. When we say about data analysis, there are different type of analysis we do depending on the data type.
Depending on the data type, we do various types of analysis. If I say continuous data type, it has some type of analysis that we can do. So correlation is an analysis that can be done on continuous data type. Regression is an analysis that can be done on a continuous data type. If you try to apply correlation in discrete data, it will not work. Now we will study various analysis, data analysis techniques. This thing, normal curve that we have seen last time, is also applicable on continuous data type. If data type is nominal, ordinal, binomial, or discrete, this cannot be done. Histogram as well, the novel curve as well. कोई doubt up there? Okay. So when I say correlation, what does it mean? Co-relation, which means relationship between two, is correlation. Okay. So relationship between two variables can be, so when I say correlation, is measured by a term or a value that is known as R. This is known as coefficient of correlation. This can be measured with a scale of -1 to 1. I'll give an example. If there are two continuous data types, say age and salary. Age is what kind of data? Okay, continuous. Salary is what kind of data? Continuous. So if age, the person's age is 20, the salary is say 30,000. Age is 25, salary is say 40,000. Salary is 40,000. Age is say 30, salary is say again 40,000. There is no salary growth, for example. And age is say 40, salary is say 50,000. Example. Now, if I draw a straight line like this, will be the relationship between two variables, which means if one is increasing, second is also increasing, which means the coefficient of correlation, that is the value of R, will be near to 1. And I'll tell you the formula how to calculate it, whether it's 1, 0.9, 0.8, whatever, but it will be lying on this side. There is a positive correlation between the two variables. One variable is increasing and second is decreasing. Example. For example, age. This is BMR. What is BMR? Body metabolism rate. So as we go up on the age, as the age increases, the BMR reduces, which means the power of the body to metabolize it reduces. So when the age is 20,
BMR is say 2000. Okay, when age is 25, BMR is say 1500. When age is 30, BMR says this much. So now the line is coming, which means there is a negative correlation between two variables. Clear? नहीं clear? हुआ? देखो एक वेरिएबल जब इंक्रीज था, जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल रिड्यूस हो रहा है. देखो जब मैं टेबल बनाता हूँ, फिर डिस्प्ले क्यों नहीं लगा? वो करना पड़ेगा अभी आया है. करना पड़ेगा. रिमोट इसलिए मैं देखो have two variables. ठीक है. Age, second is BMR. ठीक है. When age was 20, BMR was 2000. When age was say 25, BMR was 1500. ऐसे रिलेशनशिप होता है. As age increases, the BMR reduces. Okay, age is when age is 30, BMR is say 1500. When age is 35, BMR is say 1200. When age is 40, BMR is say 1000. You see, when one variable is increasing, age is increasing, BMR is reducing, which means that if you draw it here, this will come as a line like this. It's a negative relationship. Age and the second is salary. 20 salary say 20,000, 25 salary say 23,000, 30 it says 27,000, then we'll say 30,000, and it say 35,000. There's a positive relationship between age and salary. So age and salary has a positive correlation. Age and BMR has a negative correlation. Clear hua? Now in this case, age, BMR and salary, what kind of data types are these? Age is a continuous, BMR is a continuous, salary is a
continuous. That's why we are discussing about correlation. Clear हुआ? I'll go to data. Why we can't use this correlation for this field? अब इसका फॉर्मूला देखते हैं तो पता लगेगा. Data, we'll go to data analysis, go to correlation. अच्छा, इससे पहले मैं correlation जाऊँ, I'll tell you one more thing. Whenever we discuss about two variables, say age and salary, one variable is known as X, second variable is known as Y. Y is a, okay, when I say age and salary, age is a independent variable. देखो, age is independent, age अपने आप ग्रो करेगी. Salary is dependent. One variable is independent, second variable is dependent. जैसे I'll take an example. When we are calculating relationship between age and salary, it means age is X, Y is salary. Y is a dependent variable, X is a independent variable. Age is a thing that will be going by its own. Salary is dependent on the age. Age is going by its own. BMR is the thing that is dependent on the age. Clear or नहीं हुआ? हुआ clear? नहीं हुआ? कहाँ से clear नहीं हुआ? ये वाला XY. जब भी हम दो वेरिएबल लेते हैं ना, कोई भी एज, सैलरी, एज, बीएमआर, कुछ भी, तो स्टैटिस्टिकली उसमें जो रिलेशनशिप होता है ना, वैसा होता है कि एक को मानते हैं वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, मतलब फ्री है, दूसरा डिपेंडेंट है उसके ऊपर. आज आप हो, आपकी वाइफ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, वाइफ इज डिपेंडेंट ऑन यू, लेट्स एग्जाम्पल, ठीक है ना. तो वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट, सेकंड इज इंडिपेंडेंट. तो एज की बात करें तो एज इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एज किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, टाइम के साथ एज बढ़ेगी बढ़ेगी, पर सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन द एज. 20 साल में when the person is new, the salary will be less. The person grows, the salary will be more. So salary is dependent on the Age, we cannot control age. And salary is controlled by so many things. हाँ. Age. अब ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है ना, जैसे y is equal to function of x1, x2, x3, ठीक है. अब x1 हो सकता है एज हो, x2 हो सकता है आपकी एजुकेशन हो, x3 हो सकता है कुछ और भी हो. तो बट अगर मैं x करूं तो x एज ही है ना, वन ऑफ द x अगर मानो तो एज है ना. अभी हम एक एक वेरिएबल कोरिलेशन ले रहे हैं, दो वेरिएबल का रिलेशन, तो मैंने एक लिया है. अगर हम मल्टीपल का लेंगे तो मैं रिग्रेशन लूंगा, अभी उस पर नहीं आएगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तो बात है, वो मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते. आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी एज से कंट्रोल हो रही है, और भी फैक्टर हो सकते हैं जिससे कंट्रोल हो सकते हैं. स्किल्स हो गई, हाँ स्किल्स हो गई, एजुकेशन हो गई, एजुकेशन हो गई, नंबर ऑफ कंपनीज यू आर चेंजिंग हो गई. इसलिए वो डिपेंडेंट है किस चीज पे. मतलब एक चीज मल्टीपल चीजों पे डिपेंड हो सकती है ना. जैसे वाई, योर सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स, योर एज, योर एजुकेशन, योर सर्टिफिकेशन, परफॉर्मेंस एंड मेनी मोर थिंग्स. सारे क्या हैं, एक्सिस हैं. वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर हुआ? ठीक है. तो एज इज डिपेंडेंट ऑन द, एज इज इंडिपेंडेंट, सैलरी इज डिपेंडेंट. ठीक है. तो अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको.
जो देखा हमने रिलेशनशिप देखा, अभी मैं स्कोर बताऊंगा, स्ट्रॉन्ग, वीक, मैंने आपको खाली ये बताया है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। ठीक है, अभी इस पे हम आते हैं। बताया ना आपको, आर एक फंक्शन होता है, ये आर है, ये फंक्शन होता है, बताऊंगा अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। अभी मैं चाहता हूँ इसका एग्जाम्पल मिल जाए। ये एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि आप ये देखो, आर स्टडीड और एग्जाम स्कोर, इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा हुआ? आर स्टडीड इज इंडिपेंडेंट। आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे, लेकिन जो आपका एग्जाम का स्कोर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने घंटे आप पढ़े हो फॉर एग्जाम्पल। तो आर स्टडीड उसने क्या ले रखा है, एक्स, और एग्जाम स्कोर क्या लिखा है इन्होंने, वाई। क्लियर हुआ? हाँ, तो जैसे अभी हम कोरिलेशन निकालते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू, आई विल से data analysis, I'll go to correlation, I'll say okay, I'll say input range, हमने कहा हमें निकालना है एज और बीएमआर का कोरिलेशन, और आउटपुट रेंज, हमने कहा हमें आउटपुट रेंज चाहिए यहाँ पे, और मैंने कहा ओके। ठीक है, इसने क्या वैल्यू दी, -0.96, दिख रही है वैल्यू आपको? क्या वैल्यू दी इसने, 0.96, -0.96 का क्या मतलब है, माइनस मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा था, दूसरा रिड्यूस हो रहा था ना, एज और बीएमआर में, वन इज इंक्रीजिंग, सेकंड इज रिड्यूसिंग। यहाँ देखो, अच्छा मैं करता हूँ कैसे, ये यहाँ से चेक करो, होगी होगी शायद। समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ, आया समझ? ये बार दोबारा बता दूँ, आपको आया समझ? देखो हमने क्या कहा था, ये रिलेशनशिप याद है, अभी बताया था आपको, कैलकुलेट कैसे करो वो बताऊंगा मैं आपको, भी फॉर्मूला बताऊंगा उसका मैं आपको। आप कह रहे हो कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको। वो फॉर्मूला देखना, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वो अभी हम बाय मैन्युअली वी विल सॉल्व इट, बट टिल नाउ this basically is saying if one is increasing, second is reducing, which means there is a negative relationship, क्योंकि वो नेगेटिव आया है। ठीक है ना? अगर ये वैल्यू जो है, द वैल्यू दैट इज आर, मैंने क्या बोलता, द वैल्यू ऑफ आर the value of r is like this. If it is 0, which means there is no relationship between two variables. r is 1, जब r 1 होगा, you will find this type of line, straight line, straight positive line. This is r equal to 1. If r is equal to -1, तो ये लाइन दिया है आपको, तो लाइन ऐसे आ जाएगी, r is equal to -1, which means there is a strong negative correlation. ठीक है ना? तो अगर ये वैल्यू आपकी 0.7
0.7 से 1 तक रहती है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। क्या है? अगर ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर ये -0.7 से -0.7 से -1 तक रहती है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। अब इन डिफरेंट बुक्स इट कैन बी सेड एज -7 को -8 या -7.5 या -6.8 या प्लस की साइड भी ये वैल्यू डिफर, दिस वैल्यू कैन डिफर। In some of the references, you will find this value to be 0.8, 0.6, 0.65. Okay, so the value will, this range will differ. But this is a positive, this is a negative. If the value is between 0.5, like this, 0.5, 2.7, this is a moderate relationship. क्लियर हुआ? यहाँ पे भी 0.5 से -0, तो मॉडरेट रिलेशनशिप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो मॉडरेट रिलेशनशिप। अगर यहाँ आता है तो वीक रिलेशनशिप, और यहाँ आता है मान लो 0.2 या 0.3 के बीच में आ जाती है वैल्यू, तो नो रिलेशनशिप, वेरी वीक रिलेशनशिप। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब द वैल्यू दैट वी हैव गॉट इज -0.95। ये वैल्यू आई हमारी, दो वेरिएबल्स के बीच में भी फाउंड दिस वैल्यू, दिस वैल्यू -0.95। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ कि वीक हुआ? क्लियर हुआ? नहीं होता तो बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा। देखो, दो वेरिएबल थे x और y, एज और BMR। अब मैंने इनका रिलेशनशिप निकाला आपस में, तो रिलेशनशिप की वैल्यू क्या आई? 0.96। तो क्या मतलब है -0.96 का? ये वैल्यू कहीं इधर आई होगी, 0 से -1 तक जा रहे हैं, तो यहाँ कहीं यहीं आएगी 0.9। ये नेगेटिव कोरिलेशन है, तो ये नेगेटिव ही कोरिलेशन हुआ ना -0.95, और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि -1 के पास है। क्लियर हो गया ना? अगर ये प्लस 0.96 होती तो क्या होता रिलेशनशिप? तब भी स्ट्रॉन्ग होता, पर ये पॉजिटिव होता। अभी नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, पर अगर ये पॉजिटिव आ रहा होता तो ये प्लस होता, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता। जैसे कि एक प्लेयर ने 15 बॉल खेली, 25 रन बनाए, तो ये क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव के नेगेटिव? बॉल्स बढ़ रही हैं तो रन्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना रन। तो देखो, जब एक प्लेयर ने 15 बॉल खेली तो उससे 25 रन बनाए, जब 16 बॉल खेली तो उससे 25 ही हो, या हो सकते 26 हो जाए, पर ये चांस नहीं 25-24 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बॉल्स बढ़ेंगी तो रन्स बढ़ेंगे, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। अब कितना पॉजिटिव आएगा वो डिपेंड करेगा कि जिस हिसाब से बॉल बढ़ रही है उस हिसाब से रन उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आएगा। अगर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे तो वीक आएगा या मॉडरेट आएगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है? अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, आपकी एज बढ़ रही है, आपके ब्लैक हेयर्स घट रहे हैं, तो क्या रिलेशनशिप हुई दोनों की? एक बढ़ रहा है, दूसरी चीज घट रही है, तो क्या रिलेशनशिप हुआ? नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? एज जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी हिसाब से दूसरा वैल्यू घट रही है, तो स्ट्रॉन्ग हुआ कि वीक रिलेशनशिप हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ।
जो बढ़ने की रेट है वही गिरने की रेट है, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हुआ ना। अगर मान लो एज बढ़ती जा रही है और कोई चीज बहुत धीरे धीरे कर रही है तो वीक रिलेशनशिप हो गया। कोई डाउट? देखो 0.965 हो गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब अगर मैं ये एज और सैलरी का निकालूं तो क्या आएगा, ये रिलेशनशिप इनका निकालूं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली, अंदाजा लगा दो वैसे ही। 0.7, 0.8, 0.9 ऐसे कोई वैल्यू आएगी, प्लस प्लस में आएगी, ठीक है ना। तो डेटा डेटा एनालिसिस कोरिलेशन ओके, इनपुट रेंजेस this, output ranges this, will say okay। 0.996 यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्लस में आया, माइनस नहीं आया। 0.99 है तो स्ट्रॉन्ग है, 1 के पास। क्लियर हुआ? हो गया? अच्छा, अब ये इस वैल्यू क्या बोलते हैं, 0.9 को 0.96 को यानी कि आर, क्या बोलते हैं, आर। आर इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब आर को अब तुमने फॉर्मूले से निकाला है, हाउ डू यू कैलकुलेट इट बाय हैंड, ठीक है ना। जैसे आर ये एक्स था, ये वाई था, क्या था, वाई। आर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन, क्या है इसमें एन, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो यहाँ पे एन क्या होगा, फाइव। 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज है ना। एन क्या होगा, 5। एक्स क्या है, एज। वाई क्या है, सैलरी। तो अब देखो एन मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप ये वाला, एन मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना। तो इसको सम कर देता हूं, तो ये वैल्यू क्या आ गई, हम पहली वैल्यू क्या निकालनी थी, सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 4235000। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, तो इस फॉर्मूले पे ध्यान दो, क्या फॉर्मूला है, R is equal to N multiplied by sigma, sigma is sum of x, y minus of x multiplied by sum of y divided by under root n sigma x का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स लिखा है, एक पैकेट मिसिंग है ना यहाँ पे, तो हम ऐसे होगा, ठीक, सिग्मा एक्स का
स्क्वायर, ठीक है ना, ये इन्होंने ब्रैकेट में डाला, फिर n सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है n का, r का, सॉरी, तो हमने n निकाल लिया, कितना है n हमारे में, n कितना है हमारा, n कितना है हमारा, 5, तो r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय y, ये वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 423 कुछ करके वैल्यू आई थी ना, ये वैल्यू 4235000 है ना, 423000000 अब माइनस में क्या निकालूंगा यहाँ पे, सिग्मा एक्स क्या होगा हमारा, सम ऑफ एक्स, यानी कि इसका सम, यानी कि 150, और सिग्मा वाई क्या होगा, 135000, तो यानी कि माइनस माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 135000, ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय अंडर रूट, क्या है 5 सिग्मा एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का सम, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, यानी कि इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, टू 7250, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये कैलकुलेशन है, पेन पेपर भी की जाती कैलकुलेशन है। फिर y का स्क्वायर निकाल लेते हैं, y का स्क्वायर यानी कि इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये, कितना आया, ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को जब आप प्लेस करोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 150 का स्क्वायर, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा, ऐसे ही n इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, तो वैल्यू जो आखिरी में निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, जब सारी सोल्व कर लोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 0.99607, क्लियर हुआ। एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं हम, बहुत सिंपल सी, एक्स लेते हैं वाई लेते हैं, ये एक्स लिया ये वाई लिया, एक्स लिया मैंने 1 2 2 3 4 और 5, ठीक है, वाई ले लिया मैंने 5 6 7 8 8 और 9, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, समझाया। और सिंपल कर दूं, चलो इसको मैं करता हूं, 2 3 4 5 5 6, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आप मेरे को पेन पेपर पे आर की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, आर की वैल्यू निकालो, एक मिनट में मैं म्यूट करता हूं।
correlation .938, ठीक है ना, ये वैल्यू 0.938 है. नाउ यू आर कंफर्टेबल कि बट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, व्हाट इज आर, व्हाट इज कोफिशिएंट. नाउ दिस 0.938 इज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप? Strong positive. Clear? Without? This is correlation. Relationship between two variables. Now, the another concept that is known as regression. It is also very important concept. ना? तो correlation हमने कर लिया, अब हम regression भी कवर करते हैं, ठीक है ना. आज हमने क्या किया, डेटा टाइप देखा थोड़ा सा, हम correlation किया, उसके बाद क्या करते हैं हम, regression. Regression is a first model that we use for prediction. So this relationship that we have seen, y is equal to function of x1, x2, x3 up to xn. ये रिलेशनशिप होता है. y is a function of x1, which means a single dependent variable y is dependent on various axes. The example that we have taken, our salary is dependent on our age, on our education, on our certification, on our performance, and various things. This is the y. Okay, now, when we calculate this, what we do is, देखो ये कब था हमारा, this was the line that we have. Okay. Now, for example, now I want to predict what will be the salary when this person will be of 50 years age. जिसकी एज 50 होगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी? We know there is a strong positive correlation, which means we wanted to know what will be the salary when he will be of age T. हमें पता है ये लाइन है, फिर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं ऐसे, यहाँ से कट किया, हम इसको ऐसे ले आए, हम देखा था 30, 40, 50, हम कह सकते हैं 60 कह सकते हैं ना. तो यार हमें पता था कि the relationship between two variables is positive, which means if one is increasing, second is also increasing. हमें पता था. तो हमने क्या किया, जब हम प्रेडिक्ट करना है, हमें पता था ये रिलेशनशिप आगे ऐसे भी है, हमने ऐसे इंक्रीज किया तो यहाँ पे लिया है. उससे क्या हुआ, हमें पता लगे वैल्यू यहाँ पे आएगी और हम इसकी सैलरी 60 के आसपास होगी. तो अब the model that we use to predict the linear relation, when we say linear, it means अगर एक बढ़ रहा है तो सेकंड भी सेम पेस पे बढ़ रहा है, तो क्या linear relation, linear. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी ग्राफ की बात, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ ओनली, मगर कहां चलता है दूसरे मैं से बनाया था
ठीक है ना, दिस इज द लाइन। तो ये लाइन जो थी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर इस लाइन को थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं तो लाइन है कि मॉडरेट रिलेशनशिप की, जब आर की वैल्यू शायद 0.5 या 0.6 रही होगी तो लाइन ऐसे हो जाएगी, जब आर की वैल्यू 0 रहेगी तो लाइन ऐसे हो जाएगी, या फिर आर की लाइन वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी, ये पॉइंट ऐसे ऐसे आ जाएंगे, लाइन कैसे भी ले जाओ नहीं आएगा। ये लाइन जो होती है ना, मान लो how we have calculated is like this, ये पॉइंट साइज है, मान लो ऐसे पॉइंट साइज, and that I draw is something like this, known as best fit line. Best fit line is basically, this is the line that is very near to, closest to all these points, is the best fit line. Best fit line हो सकता है लाइन ऐसी भी हो जाए, लाइन ऐसी भी आ जाए, बट इनमें से बेस्ट फिट लाइन वो होगी द लाइन दैट इज वेरी नियर टू ऑल दीज, दैट लाइन विल बी द बेस्ट फिट लाइन, ठीक है ना। अब when we say about regression, normally say that this is the marker में क्या होगा, this is the line, this is the best fit line, okay। इसकी इक्वेशन होती है, this equation y is equal to mx plus c। मैं बताता हूं आपको क्या y क्या है, दिस इज x वेरिएबल, जैसे कि एज था, एज इज x की एज, दिस इज y यानी कि सैलरी, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये लाइन थी जो हमने लाइन बनाई, इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को क्या, which thing is defining the relationship between these two variables, this line, this line is mx plus c, the relationship between y is mx plus c, what is m and what is c, ठीक है ना। अब if I draw the line like this, line is cutting somewhere here, this is known as intercept। If I draw a line straight from this, there will be an angle theta or whatever angle, an angle that will be formed here, this angle is known as slope। लाइन कितनी टिल्ट है उसे क्या बोलते हैं, स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप, इंटरसेप्ट एंड स्लोप, ठीक है। C is the intercept, is a m is slope, y is equal to mx plus c। अभी पूरा समझते हैं इसको क्या है। Now if you need to find what will be the value of y at a particular x, what will be the salary when the age will be 70, you know m and c, you will be able to find the relationship. Then yeah, if you want to find the relationship between, if you want to predict the value y, you should be knowing what is the value of m and c, x को तो y को predict कर दोगे। Now how will you know the value of m and c? With the help of existing data। existing data के बीच में हमारी लाइन बनी थी,
एम और सी निकाल लेंगे. What we will do, we will find the value of m and c. If we find the value of m and c, we find the value of m and c, then we will be able to predict the value of y with the help of value of x. ठीक है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं. कई लोग उसको एम एक्स प्लस सी बोलते हैं, कहीं उसको ए एक्स प्लस बी बोल देते हैं, कुछ भी है, बट एम एक्स प्लस सी. देखो मैं दिखाता हूं आपको, लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला. अब बी भी बोलते हैं कई लोग, बी जीरो प्लस बी वन एक्स भी बोल देते हैं. ऑल आर द सेम थिंग, मतलब बात वही है. ठीक है ना. अब जैसे एम को क्या बोला उन्होंने, स्लोप, और बी को क्या बोला हुआ है, इंटरसेप्ट. या नजर नहीं आ रहा होगा शायद आपको. एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना. ये बीच में लाइन है, ये बेस्ट फिट लाइन है क्योंकि यहाँ एरर मिनिमाइज है. ठीक है ना. अब हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको. Linear regression is a statistical method that is used in machine learning, okay, in order to predict the value of unknown data using the related data values. Linear regression is used to study the relationship between dependent and the independent variable. We assume linear relationship between the variables. Linear is if one is increasing, second is also increasing, or vice versa. Independent variable are associated with the proportional change in the dependent variable. क्लियर है यहाँ तक, जब सारी चीज हमने देखी है. ठीक है. अब अभी हमने सिंपल देखा है, मल्टीपल लॉजिस्टिक हमने नहीं देखा अभी, वो बाद में देखेंगे सब कुछ. y is equal to a plus bx ऐसे बोलते हैं, तो a क्या होगा, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x is, b is स्लोप, a is intercept. इंटरसेप्ट क्या होता है, द पॉइंट वेयर दिस लाइन विल टच ऑन द y axis. इंटरसेप्ट. स्लोप इज हाउ टिल्ड द लाइन इज. ठीक है ना. तो नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और a और b को फॉर्म निकालने का तरीका ये है.
दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि एम और सी, ठीक है ना। दिस इज एम, एम इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। The formula to calculate m, formula to calculate c is equal to sigma y, ये आपको याद नहीं करने हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इससे क्या हम निकालते हैं, हम स्लोप एंड इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल देखो, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, a इज द इंटरसेप्ट, a यानी कि c, मैं भी इसको a प्लस बी कर सकता हूं, एक ही बात है, मतलब इफ यू वांट आई कैन मेक इट एज bx प्लस a, एक ही बात है, तो नाम रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो a इज द इंटरसेप्ट, b इज द स्लोप, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज पे बाद में आएंगे हम, ऐसे लाइन आती है, इसके उसमें निकालते हैं b0 b1 x, ये वैल्यूज हैं y एंड x, कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यूज हैं y एंड x, x इज इंडिपेंडेंट, y इज, ठीक है ना। मान लो x है आपकी, y है मान लो आपकी मैं लगा लूंगा पहले, थैंक यू। x मान लेते हैं कि हम आपका है आवर्स ऑफ स्टडी, आवर्स ऑफ स्टडी, और y मान लिया हमने आपका मार्क्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ मार्क्स, ठीक है। कोई बंदा 9 आवर्स पढ़ा तो 6 मार्क्स आए, एक बंदा 5 आवर्स पढ़ा 4 मार्क्स आए, 3 आवर्स पढ़ा 2 मार्क्स आए, एक बंदा 3 आवर्स पढ़ा 8 मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है रिलेशनशिप ना भी हो, ठीक है ना। इफ आई फाइंड द रिलेशनशिप, कोरल करके भी निकाल सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला से निकाला था ना, ऐसे कोरल करेंगे और हम एरे 1 कोमा एरे 2 डाल देंगे, 0.18, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में, बहुत ही वीक रिलेशनशिप है, वैल्यू है 0.18, ठीक है ना। ऐसे सपोज करो 3 था और ये होता 8, 9 था ये होता 14, 5 था ये होता 10, ऐसे होता 3 होता 2 होता, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता, ठीक है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अभी तो खाली कोरिलेशन निकालना है मैंने, ये ऐसे भी निकल सकता है और ये ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, बात एक ही आएगी, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है,
अब मैंने ये जानना है, आई द थिंग दैट आई वांटेड टू नो, हाउ मेनी मार्क्स डू आई गेट if I study for say hours. If I study for 4 hours, how many marks do I get? पहला जानना था कि is there a strong relationship? बोला कि हाँ strong relationship है. Now if I study for 4 hours and if I study for 10 hours, how many marks do I get? तो कैसे निकालेंगे? Which technique do we use? Regression. समझ आ रहा है? Regression. हमें दोनों का रिलेशनशिप निकालना है. हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये x था, ये y है, इन दोनों को प्लॉट करके इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर ली. तो ये 1 की वैल्यू थी, ये 2 की थी, ये 3 की थी, ये 6 की थी, जो भी थी. हमें अगर 10 की निकालनी है तो ऐसे करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी. पर हर बार ऐसा थोड़ा करने बैठेंगे हम. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c या फिर b एंड a और उसके बीच में हम निकाल लेंगे. ठीक है ना? तो कैसे करते हैं इसको? अब हम सेम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड, मतलब m एंड c, m बोल लो या फिर उसको b बोल लो, एक ही बात है. और दूसरा c बोल लो चाहे a बोल लो, एक ही बात है. इनकी वैल्यू निकालते हैं और इसके बेस पे, एक सेकेंड, हो रहा नहीं हो रहा? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? हो रहा क्लियर? तो हो रहा है ना? तो री वैल्यू निकाल लेते हैं हम. तो वी कैन बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी x तो दिया हुआ हमारे पास 4 एंड 10, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y हियर. तो y क्या होगा? इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय, क्या आएगा? 4 प्लस c. यहाँ पे ये तो y आएगा, y की वैल्यू नहीं हुआ क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय, क्या आएगा इधर? y मल्टीप्लाई बाय x प्लस c होता है, यानी कि mx प्लस c होता है. x तो हमें दे रखा है 10, हमें 10 पे निकालना है. इसमें आया? तो समझ नहीं आया? आई एम फाइन टू एक्सप्लेन अगेन. क्योंकि अगर हम कहेंगे कोई बात नहीं, तो फिर कोई बात नहीं वाली चीज सोल्व नहीं होगी. ठीक है? इफ यू थिंक दैट दिस थिंग इज नॉट क्लियर, आई एम फाइन टू एक्सप्लेन अगेन. दोबारा बताऊं? देखो, रिलेशनशिप होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. y क्या है? मार्क्स हमें निकालने हैं. जब हम 4 घंटे पढ़े एंड व्हेन वी स्टडीड फॉर 10 आवर्स, हाउ मच मार्क्स डू वी स्कोर? क्लियर? क्लियर? सो नाउ टू कैलकुलेट दिस, हमें पास x तो दिया हुआ है, हम m और c निकाल लें इस डेटा के बेस पे. जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम इसका m और c निकाल लें, तो हम किसी भी टाइम पे y निकाल सकते हैं. y क्या होगा जब x 4 है, y क्या होगा जब x 10 है. न्यू क्लियर? इसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा, अगर नहीं हो रहा तो.
लैपटॉप लाए हो क्या? अभी लैपटॉप लाए हो? नहीं लाए? चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस c। यहाँ होगा y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस c। ठीक है, अभी हम इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हमें m और क्या निकालना है यहाँ पे? c। m मैंने क्या बताया, वो क्या होता है? m क्या होता है? स्लोप। मैं अगर m होता है स्लोप, ये लिखो इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है, y और x, नॉन y और नॉन x। क्या लिखा है? नॉन y और नॉन x, विच मींस ये वाली वैल्यू बताओ हमें। ठीक है ना, नॉन y क्या है? ये वैल्यू। नॉन x क्या है? ये वैल्यू। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, m क्या आ गया? 1.5। c क्या आ गया? c भी क्या होगा? c क्या मतलब इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरसेप्ट। नॉन y, नॉन x 1। तो अब यहां पे क्या होगा? y इज इक्वल टू m यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, 7। यहां पे क्या होगा? m यानी कि इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1। 16। समझ आया? हेलो, हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, हमारी नंबर आ है स्टडी के 3953 और मार्क्स है 814 10 2। तो हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच। कोरिलेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हमें अब एक किसी भी अननोन नंबर की प्रेडिक्शन करनी है। मतलब हमारे पास जो पिछले डेटा है उसके डायरेक्शन से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा है ना, जैसे 3R 9R वो स्टडी करता है बच्चा, तो अब हम इससे निकाल 10 50 4 हम निकाल रहे हैं, इसकी कितने आर हम स्टडी करें तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूं तो क्लियर होगा। ठीक है ना, मैं तो दोबारा बताता हूं आपको, मैं शुरू से बता रहा हूं, अब ध्यान देना इस पे। दो वेरिएबल ले रहा हूं, x और y। ठीक है ना, x लिया मैंने एज, y लिया सैलरी। ठीक है, एज जब 20 थी तो सैलरी थी 15,000। एज जब 25 थी तो सैलरी थी 20,000। जब 28 थी सैलरी थी 22,000। 30 थी तो क्या थी? 32 थी तो क्या थी? ठीक है, क्लियर है? अब इसके बेस पे एक लाइन बना सकता हूं मैं, इसके बेस पे एक लाइन बना सकता हूं ऐसे। ये एज, ये सैलरी।
हेलो, देखो ये सैलरी है और ये एज है। अभी हम क्या ड्रॉ करते हैं कि जब सैलरी, जब एज, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एज जब कितनी थी 20, तो सैलरी थी कितनी 15,000, जो भी है 15। तो जैसे एज इतनी हुई तो ये इतनी हो गई, ये इतनी हुई तो इतनी हो गई, इतनी है तो इतनी हो गई। इसके बेस पे एक लाइन आ गई, इस पे एक लाइन आ गई। क्लियर? ये जो लाइन है, जो लाइन है, ठीक है ना, अगर हमें इसके बाद की वैल्यू निकालनी है कि एज जब 50 हो जाएगी तो सैलरी कितनी हो जाएगी, ऐसे निकालनी है ना। तो इस डेटा को के बेस पे हम दो वेरिएबल निकाल लेते हैं, एम और सी। जब हम एम और सी निकाल लेंगे तो क्या होगा कि जब हमें वाई एक्स की कोई भी वैल्यू उसके अंदर रखनी है तो हमें वाई उसका पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इसको डिफाइन करती है दो ही चीजें, एम और सी। एम यानी कि लाइन अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो यह कहां पे कट करेगी, और दूसरा ये लाइन कैसे टिल्ड है। जब मुझे दो चीजें पता चल जाती हैं तो मैं कोई भी वैल्यू पे, किसी भी एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। तो दो ही वैल्यू पता करनी है मेरे को, एम और सी। ठीक है ना। इसमें क्योंकि इसमें रिलेशनशिप होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स तो यही है, मान लो मेरे को पता करना 50, तो एम मान लो मेरा 1 आ गया, सी भी मेरा 1 आ गया, तो लिखूंगा 1 इंटू 50 प्लस 1। 52 पे करना है तो 1 इंटू 52 प्लस 1, तो भाई की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगी, तो हमें भाई पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। ठीक है ना, हम एम और सी को निकाल रहे हैं इधर। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा क्लियर? देखो हमने एम और सी को ऐसे निकालना है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं मान लो ऐसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो एज क्या है, अगर मान लो निकालना है एज जब ये निकालना है हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो m क्या होता है, स्लोप। क्या होता है, निकालने के लिए मैं करूंगा इज इक्वल टू स्लोप। उसने बताया मेरे को y बताओ और x बताओ, तो y क्या है, ये है, x क्या है, ये है। इसको मैंने बंद कर दिया। स्लोप क्या आ गया, 1011.364। और इंटरसेप्ट c यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू इंटरसेप्ट नॉन y यानी कि ये, नॉन x यानी कि ये, क्लोज कर दिया, ये हो गया। ठीक है ना। अब हमें कोई वैल्यू निकालनी है, मान लो मेरे को एज निकालनी है 45,
पे निकालना है। तो क्या होगी इसका, क्या 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 आउटपुट आएगा इसका, मैं किसी से पूछूं अगर 45 का बताओ फिर 50 का बताना, ठीक है। पहले 45 का बताओ कि मैं क्या लिखूं कि, सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि मेरे को 45 की एज की सैलरी पता लगेगी। यहाँ क्या लिखूं, इज इक्वल टू पता होगा ना एम, ये तो होगा ना एम एक्स मतलब वाई, हम वाई निकाल रहे हैं अभी, इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे कि मेरे को 40 ये इस एज में क्या सैलरी कैसे पता लगेगा, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, एम क्या है 011, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे 1011 मान लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूं 45 प्लस क्या लिखूं, ये -5506 -5506, कि जब एज 45 होगी तो सैलरी 39,989 होगी, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ कि 50 होगी तो सैलरी क्या होगी, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, क्या है, हाँ ये है एम देखो 1011.3, ये है ना M? तो 1011.3 जो भी ले लिया, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्या रहेगा 50 प्लस सी क्या रहेगा, यानी कि -5506, 45,000 सैलरी होगी, ये समझे आपको। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझे तब भी कोई बात नहीं, एक अलग चीजें मैं यहाँ लिख के देता हूँ, 3 वेरिएबल लिख के देता हूँ, एक का यहाँ पे आगे आप निकालना, एक का आप, एक का, ठीक है। 3 वैल्यू लिख के दे रहा हूँ और साथ में उसकी प्रिडिक्शन करनी है अभी एम एक्स प्लस सी से, ठीक है ना। मैं वैल्यू लिख के देता हूँ एक्स और वाई, एक्स है हमारा एज, ये है सैलरी, ठीक है ना। एज है जब 20 तो सैलरी थी 10,000, 22 तो 12,000, 24 तो 15,000, 26 तो 15,000, ठीक है ना। अब एक काम करना है आपने, ये मैंने 3 वैल्यू दी हैं, ये मैं देता हूँ कुलदीप को, ये देता हूँ श्रेया को, ये देता हूँ जतिन को, जतिन नाम है, जतिन नाम है, जतिन को, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, ये मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो आपने कुलदीप पहले यहाँ पे आके एज निकाल, वो निकालनी है जब 30 होगी और जब 34 होगी, आपने भी निकालनी है जब 34 होगी और 36 होगी, आप निकालनी है जब 40 होगी और जब 50 होगी, ठीक है। पहले आप
आके ना इधर निकाल लो और एक्सप्लेन करो। इसको रब करो। सबसे पहले हमें y इक्वल्स टू mx प्लस 100% है ना, हो जाता है और थोड़ा और कर दो, और कर दो। हाँ, बस अब बता, सब इधर आ जाएगा। सबसे पहले हमें इसका स्लोप और इंटरसेप्टर निकालना पड़ेगा द डेटा। तो mx प्लस c, तो हम पहले स्लोप निकालते हैं m नॉन y नॉन x, हमारा स्लोप आ गया। और अब हमें निकालना है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नॉन y नॉन x, ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ x इज 30। तो m into x plus c. This would be the salary of age 30. m into, आपने उसी को रब कर दिया। sorry, m into x plus c. This would be the salary of person whose age is 30. पता है? वाह। So from the given data, first of all, I will find slope. So known y and so the slope is 4,000. Now we will find the intercept. Known y and नहीं, आपने पहले इंटरसेप्ट फॉर्मूला लिखा, इज इक्वल टू इंटरसेप्ट। known y and known x. So the intercept is minus 78250. Now we will calculate this salary for age 34. फॉर्मूला होता है mx plus c mx plus c. इज इक्वल टू ला दो m M is 4,000.
multiply by what start होगा x is 34 है ना Yes, sir. प्लस Plus C. प्लस यानी प्लस माइनस माइनस होता है Minus. तो फिर माइनस लग जाए. 782 ठीक है सर. So for the 34, the salary is 57,750. now what will be the thing for 56 Mm. Yes. $65,700. अब लेकिन आप नहीं मजा आ गया ना आपको लोग लोग ब्रैकेट लगाओ नोन वाई आगे वाले चल रहे हैं ये पहला तक कोमा अब ये साथ वाली एक्स वाली सेलेक्ट कर लो नॉन एक्स से ब्रैकेट बंद एंटर कर दो ठीक है एम ए आ गया आपका सी निकालो सिलेक्ट नहीं होगा ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा इंटरसेप्ट सी डी ब्रैकेट स्टार्ट पूरा ले लो भाई कोमा वन स्पेस बंद नहीं ब्रैकेट बंद कर दो ब्रैकेट हटा दो एक मिनट फोल्डर में जाने के बाद ठीक है ठीक अब 40 पे निकालो mx plus c 1250 multiply by x क्या है 40 प्लस प्लस यानी कि माइनस हो गया तो वो माइनस है ना माइनस में 14,000 माइनस 14,000 ठीक है ना समझ आ गया ऐसे फिर पे निकाल लेना मैं आगे बताता हूँ ठीक है क्लियर हो गया ना
मैं बहुत ज्यादा कवर नहीं करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। मैं अभी आपको इसमें एक तरीका और बताता हूँ कैसे निकालना है, फिर इसको आप हैंड्स ऑन थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि मैं अभी और कंसेप्ट बताऊंगा आपको, एक दो कोवेरियंस वगैरह, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी अभी, ठीक है। तो देखो, एक तो हमने ऐसे निकाला, एक दूसरा तरीका क्या होता है, डेटा डेटा एनालिसिस। हम जाते हैं इसका रिग्रेशन, ओके। इनपुट वाई क्या है, ये इनपुट एक्स क्या है, ये, और आउटपुट रेंज क्या है हमारी, ये मेगा, ओके। देखो पूरी समरी आ गई, इसमें सारी चीज बताऊंगा मैं आपको अभी बाद में, नो वगैरह। इंटरसेप्ट क्या है, -14,000, जो कि हमारा इंटरसेप्ट ये निकल गया था। एम क्या है, 1250, एम क्या आ गया, 1250, ठीक है। इससे भी निकल गया, उससे भी निकल गया। दूसरा तरीका क्या है, एक और, इसको बाय हैंड निकालने का। तो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था अभी, ए को ऐसे बोलते हैं, बी को ऐसे, और ऐसे करके एम एक्स प्लस सी हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये कर लिया, ये कर लिया। अब बाय हैंड वाला मेथड अगर चाहो अभी करना, चाहो तो अभी कर लो, घर जा करना घर जा करना, जैसा कंफर्टेबल, ठीक है। आपने उसमें करना क्या है, आपने एम यानी कि ए और बी की वैल्यू आपने बाय हैंड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आपने उसके बाद प्रिडिक्ट करना है उस पर। लाइन कैसे बेस्ट फिट कैसे डिसाइड होता है? देखो बेस्ट फिट लाइन कैसे डिसाइड होती है, जैसे मल्टीपल लाइन बनी, डॉट आ गया, एक लाइन है तो ऐसे चल जाएगी, या ऐसे चल जाएगी, जैसे कैसे चल जाए। यहाँ पे इस लाइन का मुझे पॉइंट्स है ऐसे, एक लाइन ये, एक लाइन ये, जहाँ पे इस लाइन का डिस्टेंस मिनिमम है, जिस भी पॉइंट पे, दैट इज द बेस्ट फिट लाइन, समझे। इसे बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। सम ऑफ स्क्वायर एरर्स यानी कि जहां पे आपने लाइन ड्रॉ करी, लाइन का पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ए है, लाइन का ही पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ए है, लाइन का ही पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ए है। मान लो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। इनके डिफरेंस को स्क्वायर करोगे और वर्ग से इस लाइन का भी यही सेम कैलकुलेट करोगे, जिसका एरर मिनिमम आया, दैट इज द बेस्ट फिट। कितनी लाइन से कंपेयर करेंगे? देखो जब हम बाय हैंड करते थे ना, तो हम बाय डिफॉल्ट हैंड से बनाते थे 1 2 3 4 लाइन और अप्रोक्सीमेट बेस्ट फिट लाइन निकाल लेते थे। पर अब स्टैटिस्टिकल तरीके हैं, प्रोसेसिंग है, स्पीड है, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम हमें अपने आप ही बेस्ट फिट लाइन निकाल के देता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो इधर, जैसे स्लोप निकाला है अलग, इंटरसेप्ट निकाला है, तो उससे हमारी बेस्ट फिट लाइन बनी नहीं, या फिर उससे उससे नहीं, वो प्रिडिक्ट करने के लिए निकाला है हमने बेस्ट फिट लाइन। फिट लाइन देखो एक फिट लाइन तो हमारी पहले ही हमारी बन चुकी है, जैसे कि
क्योंकि पहले फिट लाइन बनेगी उसके बाद इंटरसेप्टर और वो निकलेगा। हाँ देखो, हाउ टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। द लीस्ट स्क्वायर मेथड, मतलब ये जो ये होगा ये और ये, इसका जो वैल्यू लीस्ट आएगी, डिफरेंस की वैल्यू लीस्ट आएगी, ये होती है y इज इक्वल टू mx c प्लस इक्वेशन। देखो आपने जो अपने एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स को फिट कर दिया, जो आपके पॉइंट थे एज और सैलरी के, आपने उन्हें फिट कर दिया, सिर्फ आपने फिट कर दिया, उसके बाद y इज इक्वल टू mx प्लस c जो आप निकाल रहे हो ना, ठीक है ना, ये अपने आप ही बेस्ट फिट लाइन लेके ही बनाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप देख रहे हो ये, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज डिपेंडेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना, ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये स्लोप, ठीक है, इसको लेके ये अपने आप ही बेस्ट फिट लाइन आपकी निकाल के देगा। पहले जब नहीं होते थे ये वाली चीजें तो हम ऐसे ड्रॉ करके ऐसे ऐसे लाइनें निकाला करते थे, पर अब ये इक्वेशंस हैं, स्टैटिस्टिकल तरीके हैं, ये सब है, तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना कि इट इज अ लीस्ट स्क्वायर मेथड, दिस इज अ लीस्ट स्क्वायर काइंड ऑफ अ थिंग दैट फाइंड्स द बेस्ट फिट लाइन। क्लियर हुआ? देखो हमें अभी निकालना क्या है, m और c, और उसके बेस पे क्या प्रिंट करना है, y विद द हेल्प ऑफ x, है ना। तो मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, आप लिख लो, ये वाली ले लो, ये एग्जांपल ले लो, इसके बेस पे क्या होगा कि आप बाय हैंड कैलकुलेट भी कर पाओगे। ये साइट ही है और इसमें ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं, आपने इसमें लिंक शेयर कर दो फिर। हाँ लिंक भी शेयर करता हूँ, ये श्रेया शेयर कर देगी, श्रेया का लैपटॉप है। श्रेया ये ना लिंक शेयर करना और इस पे इसको पढ़ लेना एक बार, बस इसी को पढ़ना, ज्यादा पढ़ोगे तो मैंने आपको इतना बताया उतना ही, क्योंकि मैंने मल्टीपल, कई लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बता रहे होंगे, ऑर्डिनल कोई, वो मैंने भी आपको सिर्फ सिंपल लीनियर बताया, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, बहुत जैसे एक्स मल्टीपल हो जाएंगे, एक था एक दो तीन, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। अभी मैंने वो नहीं बताया आपको, सिंगल बताया। जब डेटा डिस्क्रीट, आपने पूछा था डिस्क्रीट पे क्या लगता है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगता है, वो मैंने आपको भी नहीं बताया, खाली कॉन्टिन्यूस डाटा का बताया। ऑर्डिनल डाटा मैंने आपको डेटा टाइप बताया, ऑर्डिनल स्क्वायर नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है ना। ऑर्डिनल का नहीं बताया। ऑर्डिनल डाटा कौन सा होता है, जो ऑर्डर्ड होता है, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, उसके बेस पे भी रिग्रेशन बनता है, मैंने आपको नहीं बताया अभी। अभी आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन बताया है, सिंपल मल्टीपल सिंपल। तो अभी आप सिंपल वाले का ही एक फॉर्मूला बाय हैंड सोल्व करके देख लेना, एम और सी की वैल्यू निकाल के देख लेना, ठीक है। मैं बताने को आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दूंगा अभी, लेकिन मेरे को पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मल्टीपल पे आऊंगा, उस पे आऊंगा तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आज वाला, डेटा टाइप, कोरिलेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो डेटा टाइप और रिवाइज करेंगे, डेटा टाइप मतलब ये डेटा एनालिसिस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सीक्वल को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर सीक्वल की हेल्प से भी हम काफी चीजें एनालाइज करेंगे, मतलब डेटा को जोड़ना, डेटा को ज्वाइंस करना, क्योंकि ये डेटा को लाने के लिए पहले डेटा को बनाना जरूरी है। तो मैंने आपको खाली एक एग्जांपल बताया कि डेटा कैसे आता है, तो डेटा कैसे बनता है वो बताऊंगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं? तो ये एक सोल्व करना है, इसको ये सोल्व करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सैटरडे को 3 बजे, ठीक है ना। टाइम चेंज किया क्या किया है, पेरेंट्स से। सुबह तो मेरे लिए फिजिबल नहीं होगा शायद, मैं बात कर लूंगा। विनीत ने किया है कि इन्होंने किया है? मैं बात कर लूंगा, 3 से 5:30 तक का ही रखेंगे टाइम, ज्यादा करूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। कभी होगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम आधा घंटा और ले लेंगे, और ज्यादा करोगे तो आप लोगों को, मैं चाहता नहीं कि मैं तो करा दूं पर आप लोगों को समझना है, ठीक है।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। श्रेया ये लिंक शेयर कर देना इनसे ना, ग्रुप पे डाल देना।